بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے ایف بی آر کی جانب سے تمام ٹیکس ملازمین کی ہفتہ بعد چھٹیاں منسوخ۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق تمام ملازمین معمول کے مطابق فرائض سر انجام دیں گے۔ 23 اور 30 نومبر کے روز عملہ دفاتر میں موجود رہے گا۔ ایف بی آر نے متعلقہ چیف کمشنرز کو مراسلہ ارسال کر دیا۔ چیف کمشنرز کو احکامات پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت۔ ایف بی آر کے مطابق ٹیکس ریکوری اور ٹیکس پیئر کو تمام سہولیات فراہم کی جائیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ایف بی آر کی جانب سے تمام ٹیکس ملازمین کی ہفتہ وار چھٹیاں منسوخ۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق تمام ملازمین معمول کے مطابق فرائض سر انجام دیں گے۔ 23 اور 30 نومبر کے روز عملہ دفاتر میں موجود رہے گا۔ ایف بی آر نے متعلقہ چیف کمشنرز کو مراسلہ ارسال کر دیا۔ چیف کمشنرز کو احکامات پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت۔ ایف بی آر کے مطابق ٹیکس ریکوری اور ٹیکس پیئر کو تمام سہولیات فراہم کی جائیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ ایف بی آر کی جانب سے تمام ٹیکس ملازمین کی ہفتہ وار چھٹیاں منسوخ۔ نوٹیفکیشن کے مطابق تمام ملازمین معمول کے مطابق فرائض سر انجام دیں گے۔ 23 اور 30 نومبر کے روز عملہ دفاتر میں موجود رہے گا۔ ایف بی آر نے متعلقہ چیف کمشنرز کو مراسلہ ارسال کر دیا۔ چیف کمشنرز کو احکامات پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت۔ ایف بی آر کے مطابق ٹیکس ریکوری اور ٹیکس پیئر کو تمام سہولیات فراہم کی جائیں۔ ایف بی آر کی جانب سے تمام ٹیکس ملازمین کی ہفتہ بعد چھٹیاں منسوخ کر دیں گے۔ اس پر مزید بات کریں گے وقاص عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی وقاص بتائیے گا۔ جی ایف بی آر نے تمام چیف کمشنرز کو ایک مراسلہ جاری کیا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ٹیکس ریکوریاں بہتر کرنے کے لیے اور ٹیکس کے جو اہداف ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے تمام جو ایف بی آر کے ملازمین ہیں ان کی ہفتہ وار کی چھٹی منسوخ کی جاتی ہے اور تمام ملازمین اپنے اپنے دفاتر میں حاضری کو یقینی بنائیں گے۔ تمام چیف کمشنرز کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اگر کوئی بھی افسر جو ہے اس حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، کیونکہ ایف بی آر کو رواں مالی سال کے دوران ٹیکس وصولیوں میں جو ہے وہ اہداف حاصل کرنے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس لیے تمام جو ملازمین ہیں ان کو یہ ہدایات کی گئی ہیں کہ وہ ہفتہ وار چھٹی نہیں کریں گے۔ جی شکریہ وقاص عظیم اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سموگ میں کمی، ملتان ڈویژن میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز۔ تمام سرکاری اور نجی اسکول کھل کے پہلے روز بچوں کی حاضری 40% رہی۔ گھٹتے ہی ملتان ڈویژن میں تعلیمی سرگرمیاں شروع ہو گئیں۔ محکمہ تعلیم کی جانب سے تمام سرکاری اور نجی اسکول کھول دیے گئے۔ اسکول 8:45 پہ کھولے گئے جبکہ چھٹی 2:45 پر ہوئی۔ اسموگ کے بعد پہلے روز اسکولوں میں بچوں کی حاضری 40% رہی جبکہ اساتذہ پوری تعداد میں اسکول آئے۔ آج اسکول اوپن ہوئے ہیں اور بچوں کو کل ہی ہم نے میسیجز اور سارا پیرنٹس کو کر دیا تھا، تو ابھی آج 100% تو نہیں ہے۔ انشاءاللہ کل کوشش ہوگی کہ ہماری اسکول کی اور بچوں کی حاضری 100% ہو، اور پڑھائی کی جو ان کی ڈیفیشنسی ہے وہ انشاءاللہ ہم اس کو کور کرنے کی فل کوشش کریں گے، اور بچوں کو SOPs اور ماسک سارا بتا دیا ہے انشاءاللہ، تو کچھ بچے کر کے آئے ہیں اور کچھ کل انشاءاللہ سارا کور کر کے آئیں گے۔ اسکولوں میں اسموگ کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی۔ طلبہ کا کہنا تھا کہ اسکول آنا اچھا لگا، سلیبس کافی رہتا ہے، اب پڑھائی پر مکمل توجہ دیں گے۔ میری ٹیچر نے میرے گھر میسج کر دیا تھا کل ماسک سارے بچے لگا کے آئیں گے، اور کچھ بچے لگا کے آئے ہیں، کچھ بچے نہیں لگا کے آئے ہیں۔ آج ہماری تعداد تھوڑی کم ہے لیکن کل سے فل ہوگی 100%۔ اساتذہ کا کہنا تھا کہ اب امتحانات کے لیے نصاب کور کرنا مشکل ہے، پھر بھی بچوں کی بہتری کے لیے بھرپور کوشش کریں گے۔ کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ الشفا آصف، ملتان۔ یہ بات کریں گے غلہ منڈی ملتان میں لال مرچ کی قیمت میں کمی۔ لال مرچ 3000 روپے فی من سستی ہوگی۔ اس پر مزید بات کریں گے فراز رمضان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی فراز بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی ہول سیل مارکیٹ غلہ منڈی میں موجود ہوں۔ بات کرتے چلیں تو مسالہ جات کی قیمتوں میں کمی دیکھنے میں ملی ہے۔ لال مرچ جو ہے وہ 3000 روپے من اس وقت غلہ منڈی میں سستی ہو چکی ہے۔ 3000 روپے من سستی ہو کر لال مرچ اس وقت جو ہے وہ 21000 روپے من فروخت کی جا رہی ہے۔ اس وقت بات کرنے کے لیے آڑتی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں بھائی جان کیا وجہ ہے کہ لال مرچ ہم دیکھ رہے ہیں 24000 روپے من تھی، اب 3000 روپے من کی سستی ہوئی ہے اور 21000 روپے۔ لال مرچ کی آمد زیادہ ہوئی ہے، گاہک نہ ہونے کے برابر ہے منڈی میں، اس وجہ سے 3000 روپے من کا بندہ ہے۔ یہ عوام کے لیے خوشخبری ہے، 3000 روپے من، چلو مرچ تو سستی ہوئی ہے۔ ابھی یہ بھی کچھ سننے میں آ رہا ہے، ابھی چینی بھی کچھ ریٹ کم ہوئے ہیں چینی کے۔ اللہ کرے، امید کرتے ہیں یہ ایسے ریٹ کم ہوئے کوئی عوام کو سکون کا سانس ملے۔ ہاں، مہنگائی سے لوگوں کی قوت خرید متاثر ہوئی ہے۔
जैसा कि आपने देखा इस वक्त हमने आरती से भी बात की है, एक और आरती से भी जानते हैं इनसे इस हवाले से इनका क्या कहना है। भाईजान आप क्या कहेंगे इस हवाले से? लाल जी, हुकूमत ने बहुत अच्छा इकदाम किया कि जो है ना पहले 24,000 रुपये मन थी मिर्च, जो है ना अब 3,000 रुपये कम होकर 21,000 रुपये रह गई है। तो हमारी हुकूमत से अपील है कि जैसे ये मिर्च के रेट कम किए, बाकी भी मसाला जात के रेट कम किए जाएं ताकि लोगों को आसानी हो। तो हमारी हुकूमत से अपील है कि तमाम मसाले जात के जो है ना रेट कम कर दिए जाएं जी भाईजान, और बाहर जो है वो भी सस्ती कर दी जाए। ज़ाहिर है कि अगर हम सस्ती बेचते हैं और हमें महंगी पड़ेगी तो ज़ाहिर है हम आड़ती साहिबान को जो है ना ये ज़रा सर नुकसान है, जितने भी ताजर गला मंडी के अंदर बैठे हैं। तो हमारी जो है ना हुकूमत से अपील है कि हमारे बाहर भी सस्ती की जाए मिर्च, ताकि हमें सस्ती खरीद हो और हम इसको मज़ीद सस्ता करके बेच सकें जी। बताइएगा ये इस वक्त कौन से शहर की लाल मिर्च आई हुई है मार्केट में? ये इससे सिंध से आती है, कूंदरी मंडी से, तकरीबन टंडो जाम, टंडो, अल्लाह यार और इसकी डिगरी, नौकोट, वहाँ से आ रही है मिर्च, सिंध से आ रही है। अच्छा, इस वक्त टॉप क्वालिटी की मिर्च कौन सी है? टॉप क्वालिटी की मिर्च सिंध डंडीगढ़ है, हाई ब्लड है, जो कूंदरी से आ रही है, और लौंगी आ रही है कूंदरी से। ये टॉप की मिर्च है, सबसे अच्छी मिर्च यही है जो कूंदरी मंडी से आ रही है, सिंध से आ रही है। जी, जैसे कि आपने देखा इस वक्त हम जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट गला मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर बात करने के लिए हमारे साथ और भी आड़ती मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भाईजान, जैसा कि आपने देखा ये अच्छी खबर है, 3,000 रुपये लाल मिर्च सस्ती हुई है। जो दीगर मसाला जाता है उनको भी सस्ता होना चाहिए। बिल्कुल जी, सस्ता होना चाहिए। महंगाई ने तो आखिर बनाई हुई है, कारोबार भी मंडी के अंदर ठप हो गए। इस टाइम रौनक होती थी कारोबार पे, इस टाइम यानी कि 4 बजे के बाद ऐसे सुनाटा हो जाता है कि बुरा हाल है रेट की तेजी की वजह से। तो ये रेट कम होने चाहिए। अभी फिलहाल 3,000 रुपये, 3 से 4,000 रुपये की कमी मिर्च के अंदर आई है, लेकिन वो मुझे लगता नहीं है कि वो ज़्यादा देर रहेगी। ये तेज़ी की तरफ ही है इस वक्त, और ये 20,000, 21,000, 22,000 ये कोई कमी नहीं कहेंगे, क्योंकि पहले मिर्च का रेट 10,000, 12,000 होता था। तो एक ही दम 12 से समझो कि इस वक्त 24 यानी कि 12,000 रुपये रेट। अभी भी महंगा है माल, तो अभी तो मज़ीद माल कोई दूसरे माल आ रहे हैं, देसी माल आ रहे हैं, उनकी वजह से थोड़ा बहुत रेट नीचे आया है। और मिर्च की पैदावार कम है इस वक्त, मिर्च इस वक्त कम है। अगर मिर्च नई मिर्च आई और अगर ये सिस्टम ही नहीं बना, ये मेरे हिसाब में तो ये 30,000 रुपये पे मिर्च रह जाएगा। और इसके साथ हल्दी होती थी वो 11,000, 10,000, 6,000, 7,000, इस वक्त 27,000 रुपये हल्दी का रेट है, 27 से 28,000। अगर हम उसको पिसवाते हैं, पीसने के बाद उसका रेट 30,000 रुपये मन पड़ जाता है, 30 से 32,000 रुपये मन पड़ जाता है। और लोग आवाम क्या रेट खरीदेगी, क्या नहीं करेगी, और बड़ा बुरा हाल है इस वक्त जो निज़ाम है। थैंक यू जी, मेहरबानी। जी बिल्कुल, इस वक्त हमने आड़तियों से भी बात की है तो इनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि सिंध की लाल मिर्च इस वक्त मंडी में आ रही है और इस वक्त माल की आमद जो है वो ज़्यादा है, लेकिन ख़रीदार बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त ख़रीदार की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो महंगाई की वजह से मुतासिर हो रही है। इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अभी भी जो है वो मिर्च की जो कमी हुई है ये ना होने के बराबर है। मिर्च को जो है वो मज़ीद सस्ता होना चाहिए ताकि आवाम को, आड़तियों को मज़ीद फ़ायदा हो सके, क्योंकि लाल मिर्च जो है वो 10,000, 12,000 रुपये मन जो है वो फ़रोख्त की जा रही थी, लेकिन कुछ ही दिनों में जो है वो एकदम तेज़ी आई और लाल मिर्च 24,000 रुपये मन हो चुकी थी। लेकिन अब जो है वो लाल मिर्च में 3,000 रुपये मन की कमी देखी गई और आज का होलसेल मार्केट गला मंडी का रेट जो है वो लाल मिर्च 21,000 रुपये मन फ़रोख्त की जा रही है। जी शुक्रिया फराज रमजान। ज़राई इनकम टैक्स बिल नामंजूर। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी किसान बोर्ड पाकिस्तान ख्वाजा सगीर अहमद कहते हैं कि ज़राई टैक्स से किसान मज़ीद दबाव में आएगा। हुकूमत ज़राअत कुश मुहिम चलाए। पंजाब असम्बली से ज़राई इनकम टैक्स बिल मंजूर कर लिया। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी किसान बोर्ड पाकिस्तान ख्वाजा सगीर अहमद का कहना था कि ज़राअत मुल्क की बुनियादी इकाई है, ज़राई टैक्स किसान पर जुल्म है। हुकूमत बताए किसान को कहाँ रिलीफ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि किसान को बीज, खाद और ज़राई अद्वियात महंगे मिल रहे हैं, काश्तकार के पास फसल काश्त करने के पैसे नहीं। हुकूमत ऐसे इकदाम ना करे जिससे किसान मज़ीद दबाव में आए। मुल्तान पुलिस की तरफ से गाड़ियों के इंस्पेक्शन का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता 10 माह के दौरान गाड़ियों की इंस्पेक्शन रिपोर्ट जारी। मुल्तान पुलिस के इंचार्ज MTO ब्रांच मोहम्मद राशिद की कहना है कि गुज़िश्ता 10 माह के दौरान 250 से ज़ायद गाड़ियों की इंस्पेक्शन की गई। मुल्तान पुलिस गश्त के लिए गाड़ियों और मोटर बाइक्स को फिट रखने के लिए कोशां। मुल्तान पुलिस ने गुज़श्ता 10 माह के दौरान गाड़ियों की इंस्पेक्शन और मुरम्मत की रिपोर्ट जारी कर दी। इंचार्ज MTO ब्रांच मोहम्मद अरशद के मुताबिक गुज़श्ता 10 माह के दौरान 250 से ज़ायद गाड़ियों की इंस्पेक्शन की गई।
तो हमारी 3 से 4 गाड़ियां थी जो टोटल में धुआं छोड़ती थी। ये मोबाइल चेंज ना होने से या फिल्टर गंदा होने से धुआं छोड़ती हैं। तो बाकायदा हमने उनको स्मोक से पहले ही उसको हमने रिपेयर करवाया और सर्टिफिकेट जमा करवाया, जिसके हमारी तमाम गाड़ियां अल्हम्दुलिल्लाह ओके हैं। मुल्तान में 83 गाड़ियों, डॉल्फिन फोर्स की 23 बाइक्स, मुहाफिज स्काउट की 27 मोटरसाइकिल्स और एलीट फोर्स की 27 गाड़ियों की इंस्पेक्शन करके मुरम्मत करवाई गई हैं। 83 के करीब छोटी बड़ी गाड़ियां जो हैं वो रिपेयर करवाई हैं। इसके अलावा एलीट की 17 गाड़ियां हैं जो हमने रिपेयर करवाई हैं। डॉल्फिन की हैवी बाइक्स जो 500 सीसी है उसमें हमने 23 गाड़ियां रिपेयर करवाई हैं। और इसी तरह ये मुहाफिज कार जो 1 to 5 है ये हमने 17 के करीब रिपेयर करवाई हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्तान में हर हफ्ते गाड़ियों की इंस्पेक्शन की जाती है। कैमरामैन इरफान असलम के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। अवामी सहूलत के प्रोग्राम में अवाम ही खार होने लगी। मुल्तान के विलायत हुसैन कॉलेज में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इंतजामिया ने नाअहली की इंतहा कर दी। 3 रोज से खातीन इमदादी रकूम के लिए धक्के खाने पर मजबूर, ज़हनी और जिस्मानी अजियत का शिकार खातीन इंतजामिया के खिलाफ फट पड़ी। सिक्योरिटी गार्ड है और ना ही कोई कतार, मुस्तहिक खवातीन इमदादी रकूम के लिए धक्कों का शिकार। मुल्तान के विलायत हुसैन कॉलेज में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इंतजामिया की बदतरीन नाअहली, मुस्तहिक खवातीन को 3 रोज से किस्त मिलने का इंतजार। खवातीन का कहना है कि 3 रोज से बच्चों के साथ खुआर होना पड़ रहा है। जो पेमेंट नहीं देंगे ना उनके कार्ड ही नहीं लेंगे, वो 3-4 दिन के बाद चली जाएगी, फिर वो देंगे ही नहीं कार्ड वापस। फिरते रहो, चक्कर लगाते हो, किराया लगाओ, बच्चों को छोड़ के आओ, चाहे कोई बीमार है सिमार है, लगाओ चक्कर। 3 दिन हो गए आ रहे चक्कर ला रहे हैं, सुनते ही नहीं पे बच्चियां दे नाल जलील ही करी जा रहे हैं। लेडीज को परेशान ना करें, लेडीज को हरासा किया जाता है और लेडीज का पीछा करते हैं और लेडीज को कहते हैं कि 2-2 हज़ार देंगी तो पेमेंट निकलेगी। अगर पेमेंट नहीं देना चाहती वो तो उनके कार्ड ब्लॉक कर दिए जाते हैं। खवातीन का मजीद कहना है कि टोकन के लिए जगह जगह धक्के खाने पड़ते हैं। यहाँ पर ना तो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा किया गया और ना ही कोई कतार बनाई गई है। कोई सुन नहीं रहा, कोई कह रहे को टोकन मिलेगा, इधर जाएं उधर जाएं, कोई भी नहीं सुनता, ना कोई टोकन ले रहा है ना कोई कार्ड ले रहा है ना दे रहे, सुबह से दलालत ही हो रही है। मेरे अंगूठे मैच नहीं हुए, आज मैं इनसे पैसे लेने इधर आई हूँ तो देखा कि टोकन का हिसाब लगाया, टोकन खत्म कर दिया जाए तो बेहतर है। धक्के दे रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं हमारी। लाइन लगवा लें या गार्ड खड़ा कर दें या भाई सिक्योरिटी हो जाए तो फिर तो ये आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो फिर कहाँ से मिलेंगे ये पैसे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सफेद पोश तबके को इज्जत के साथ मुआवजा दिया जाना था, मगर यहाँ उल्टी गंगा बहने लगी। खवातीन ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन कामरान के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। तुरंडा मोहम्मद पनाह के शहरी बुनियादी सहूलियात से महरूम कई इलाकों को मिलाने वाला मेटल रोड 10 साल से टूट फूट का शिकार। सड़क पर पड़े पत्थर और गड्ढे हादसा का सबब बनने लगे। तरंडा मोहम्मद पनाह में यूनियन कौंसल तरंडा गुरगेज के मकीन बुनियादी सहूलियात से मारूं। यूसी नंबर 122 में तरक्याती काम न होने के बराबर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। मुतअद्दिद इलाकों को मिलाने वाला मेटा रोड 10 साल से तबाह हाल है। PP 255 से दूसरी मरतबा मुंतखब होने वाले MPA गजनफर अली खान लंगावी यहाँ के मसाइल हल करने में नाकाम नजर आते हैं। इलाका मकीन कहते हैं बच्चों को स्कूल जाने और मरीजों को अस्पताल मुंतकिल करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। मुतअद्दिद बार सियासी नुमाइंदों को दरखास्त की मगर किसी ने इस मसले पर तवज्जो नहीं दी। खड्डे और टायर फट जाते हैं, मरीजों को ले जाने में बड़ी तकलीफ होती है और बहुत सारे मसले मसाइल हैं और यहाँ कोई नहीं सुनता सियासी लोग और ना ही कोई इंतजामिया सुन रही है हमारी बात। इलाका मकीनों ने हुक्काम बाला से नोटिस लेकर सड़क की फौरी तमीर और मुरम्मत करवाने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली, रोही, तरंडा मोहम्मद पनाह। मुल्तान में सब्जी और फल फरोशों की मनमानियां जारी। सरकारी कीमतों में कमी के बावजूद मार्केट रेट्स कम न हो सके। मुल्तान में मुनाफा खोर माफिया सरगर्म, प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल, सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम। सरकारी कीमत में कमी के बावजूद अदरक 700, लहसुन 600 और मटर 300 रुपए पर बरकरार है। सरकारी नरखों में सब्ज मिर्च 118, प्याज 100 रुपए और टमाटर 98 रुपए मुकर्रर। मार्केट में शिमला मिर्च 350, फूल गोभी 200 और बैंगन 130, भिंडी 230, शलजम और मेथी 120 और घिया कद्दू 160 रुपए किलो फरोख्त। मार्केट में फलों के दाम भी बेलगाम हो गए। पपीता 500, अनार 400, खरबूजा 350, सेब 250 से 300, देसी अमरूद 250, मौसमी 100, शक्करी 80 रुपए किलो, जबकि केला 140 रुपए में दर्जन दस्तयाब हैं। शहर ओलिया में चिकन 482, मछली 450 से 550 रुपए तक दस्तयाब है, जबकि अंडे 342 रुपए दर्जन तक पहुँच गए। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ जिले राब्ता कमेटी का इजलास में मेंबरान असम्बली ने अपने अपने तरक्याती मनसूबों वाले प्लान पेश किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस का कहना है कि जिला भर 202 तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है। 11 मनसूबे मुकम्मल हो चुके हैं।
آج دنیا بھر میں بچوں کا دن منایا جا رہا ہے۔ بھاونگر کے بچے اپنے دن سے بے خبر محنت مزدوری میں مصروف ہیں۔ بچوں کا کیا کہنا ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ میری عمر 14 سال ہے، میں اسکول پڑھنا چاہتا ہوں پر کام کر رہا ہوں، ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے اسکول جانے کی۔ میری 18 سال عمر ہے، میں محمد ثقلین ہوں، ٹبا مظفرپورے پہ رہتا ہوں۔ میرے والد صاحب بہت کمزور ہیں، وہ مزدوری وغیرہ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے میں اب ہنر سیکھ رہا ہوں، پڑھائی میں نے چھوڑ دی۔ ہم 5 بہن بھائی ہیں۔ آپ بڑے ہیں؟ میرے سے اوپر 2 بہنیں میری 2 چھوٹی ہیں، شادی کسی کی بھی نہیں ہوئی ابھی، تو میں اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔